Hello students, welcome back to our channel again. Hope you all are doing great. And today we are going to sum up the whole chapter, or you can say it is going to be the concluding part of the chapter and last video for the chapter reading, that is Constitution Why and How. We are going to sum up it today. So till now we have discussed a lot of things, and I think I am able to explain you everything that was necessary and important in the chapter, and you are able to answer the question as well, which are asked in the middle exercise of the question, in the middle exercise of the chapter. And yesterday I have left you with the question that was it necessary, was it a borrowing constitution, then why we could we not have a constitution that does not borrow anything from anywhere else. Yesterday I told you that by the lines of Dr. B.R. Ambedkar, we have understood that Indian Constitution, in the context of Indian Constitution, we have taken a lot of things from lot of the countries. But now question is that was it necessary to take the things from all other countries? And could not we have a constitution that does not borrow anything from anywhere else? It means could we frame that kind of constitution which could be completely new in the world history? I have left you with this question. And the answer also we have studied yesterday in the form of this paragraph. Because experience of other countries, experiments of other countries, we have taken a lot of things from these two terms. We have learned from each and every country. We did not made the constitution just only in that form that we wanted to create something new. No, firstly we analyzed the situation of the society, we understood the demand of the society, we understood the depth of Indian society, and after that we analyzed the constitution around whole of the world. We understood that which kind of things should not be there in the constitution and which good thing we can include in our constitution so that we can make a unique constitution, right? Because we have first understood the demand of our society, after that understanding all of the things which were existing the world around, after that we took the analyzation of that thing, and after that we included that part only which was required according to our situation, right? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं था कि आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख देना है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा हो, जो जिसको बनाने में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइम लगा हो, बट आपको क्या बनाना था, आपको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग डील करता हो, जो आपकी सोसाइटी की एस्पिरेशंस को फुलफिल करता हो, आप उससे अपने आइडियाज को, अपनी वैल्यूज को, अपने गोल्स को अचीव कर सको। और इसके लिए देखो एक कोटेशन होती है और सोसाइटी में चीजें चलती हैं कि जरूरी नहीं कि आप सब कुछ करके ही सीखो, राइट? क्योंकि उसके लिए उम्र बहुत कम हो जाती है। कई बार हम क्या कर सकते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीजें गेन कर लेते हैं। एंड द सेम थिंग, सेम कोटेशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो यहाँ पर वही चीज मेंशन है, वन लाइक्स टू आस्क, यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कोटेशन है, एंड बाय रीडिंग दिस, बाय अंडरस्टैंडिंग दिस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दी अनदर कंट्रीज and why did not we include everything different in our constitution. अब देखो, in this quotation it is mentioned, one likes to ask whether there can be anything new in the constitution framed at this hour in the history of the world. मतलब कोई भी आपसे पूछ सकता है कि क्या ऐसा हो सकता था कि हम कुछ भी मतलब नया करते कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो क्या होता, वो जो नयापन था वो बिल्कुल न्यू होता इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आपको क्या करना था, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना देना चाहिए था जो बिल्कुल न्यू होता। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। The only things, if there can be any,
in a constitution framed so late in our day are the variation made to remove the faults and accommodate it to the needs of the country. अब देखो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि आपको कुछ नया बनाना है, आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, आपको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिसके बनने में सबसे ज्यादा टाइम लगा है। नो, दैट वॉज नॉट द ऑब्जेक्टिव। बट आपको क्या करना था, आपको ये चेक करना था कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेट बना और अगर आपने उसमें इतने प्रोविजंस लिए फॉरेन कंट्री से, तो वो और जो टाइम इतना लेट हुआ आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में, उसके पीछे रीजन ये था कि हम क्या कर रहे थे उस टाइम ड्यूरेशन में, हम सारे के सारे फॉल्ट्स को रिमूव कर रहे थे। And what were we trying to do? We were trying to accommodate. It means we were trying to make a coordination to the needs of the society. यानी आपने उठा के कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी, ऐसा नहीं था। हम लोगों ने देखा कि इस पर्टिकुलर सिस्टम से हमारी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम हमारी कंट्री में प्रॉपरली वर्क करेगा। तो हमने क्या किया, ये चीजें चेक की कि कौन सा सिस्टम हमारी कंट्री की नीड्स के साथ अकोमोडेट करेगा। And after that, we implemented all the things in the constitution. I think the vision of the father of Indian constitution is also clear to all of you. So now, next, this whole page, or you can say this complete table, is very important for you because it is showing, and the questions are asked directly from you, that which provision we have taken from which country. सो वी आर गोइंग टू स्टडी कि वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन थे जो हमने कौन कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किए। एंड ऑन दीज थिंग्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द बोरोइंग बैक, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं कि भारत ने क्या किया है, बहुत सारी कंट्री से कुछ ना कुछ उधार लिया और अपना कॉन्स्टिट्यूशन का थैला भर लिया। इट इज नोन एज बोरोइंग बैक। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वो चीजें कौन कौन सी हैं जो हमने फॉरेन कंट्री से दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। So, सबसे फर्स्ट आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों आएगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट? बिकॉज वी वर द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स ओनली, राइट। और हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था फॉर मोर देन 200 years। तो इसका क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि उससे पहले हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट, है ना। हमारे पास मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी, बट जैसे ब्रिटिशर्स ने कंट्री में एंट्री की, वी वर एबल टू डू अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, राइट। बट जब ब्रिटिशर्स गए तो उनका कहीं ना कहीं जो वो माइंडसेट था, जो उन्होंने इतने ईयर्स में हम लोगों को ट्रेन किया, उसका कहीं ना कहीं बहुत लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा। एंड वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो अभी सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे कि आपने क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। अब देखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये क्या होता है? दिस इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शन। एंड व्हाट डू वी डू इन दिस सिस्टम? देखो हमारी कंट्री में क्या होता है, सपोज इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जिस पर्सन को औरों की कंपैरिजन में ज्यादा वोट्स मिलते हैं, उस पर्सन को हम डिक्लेयर कर देते हैं विनर, राइट। And this system of election is known as first past the post. And this system we have adopted from the British Constitution. कि हमने क्या किया है, हमने ऐसा इलेक्शन प्रोसीजर अडॉप्ट किया जिसमें हमने ये नहीं देखा कि जो पर्सन है उसके अगेंस्ट में कितने वोट्स पड़ रहे हैं। हमने सिर्फ ये चेक करना है, सपोज आप एमपी किसी को बना रहे हो, आप एमएलए किसी को बना रहे हो, तो आप ये चेक करते हो कि इसको औरों की कंपैरिजन में वोट्स ज्यादा मिलने चाहिए, तो आपने उसको क्या बना दिया, एमएलए या एमपी बना दिया। दिस इज द सिस्टम एंड बिकॉज इट वाज इजी आल्सो, दैट्स व्हाई वी हैव अडॉप्टेड इट। और भी सिस्टम होते हैं, सेकंड इज प्रोपोर्शनल सिस्टम, वो हमने जो अडॉप्ट नहीं किया, दैट वी विल डिस्कस इन द थर्ड चैप्टर, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। नाउ थर्ड इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो ये क्या होती है, आई हैव टोल्ड यू देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको कंसीडर करते हो, वेयर देयर आर टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, वेयर देयर आर टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द टू टाइप्स आर रियल एंड नॉमिनल। रियल और नॉमिनल कैसे, जैसे हमारी कंट्री है, एवरी टास्क इज डन विद द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, बट वो क्या है, नॉमिनल। नॉमिनल मतलब होते हैं सिर्फ नाम के, यानी जिनके पास जो पावर्स को एक्चुअल में यूज नहीं करते।
And second is real executive, that is the prime minister of the country, which uh, by whom the powers are used in actually in real ground. That is parliamentary form of government. समझ आया? It means where there are two type of executive, real and nominal. And there is a relation between legislature and executive also, क्योंकि जो आपकी executive होगी that will be responsible towards legislature. हमारी कंट्री में क्या होता है, मिनिस्टर्स कब तक मिनिस्टर है, जब तक उनको लेजिस्लेचर यानी लोकसभा में मेजोरिटी होती है. जैसे ही मेजोरिटी खत्म हो जाती है, वी से दैट गवर्नमेंट हैज कोलैप्स्ड. इट मींस दैट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. थर्ड थिंग इज द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ. अब देखो रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ मीन्स होता है देयर विल बी रूल ऑफ लॉ ओनली. Rule will not be done by any specific person only. Rule will be of law. It means every person will be treated equally on the basis of law. There will be no any kind of discrimination on any ground. That is rule of law, and laws are equal for everyone. Clear? Fourth is institution of the speaker and his or her role. जो हमारी कंट्री में स्पीकर का रोल है, स्पीकर लोकसभा, उसकी जो पावर्स है, कैसे कि जैसे अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ये मनी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, तो अगर वो मनी बिल है तो उसको मनी बिल डिक्लेयर करने की जो अथॉरिटी होती है दैट इज विद इन द स्पीकर ऑफ इंडियाज लोकसभा. उसके अलावा अगर लोकसभा में सेशन चल रहे हैं तो वहां के डिसिप्लिन को, डेकोरम को मेंटेन करना, दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पीकर. But the most important thing that speaker is from the winning party. But after the getting the authority as a speaker, he becomes neutral from politics. And all these things we have taken from British Constitution. Got it? Along with this law-making process कैसे? I have told you in the previous videos that we are from the Lord Buddha's country. और यहाँ पे क्या होता है, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है, इसलिए हमने इसको क्या बनाया, कुछ चीजें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं और कुछ चीजें बहुत ज्यादा रिजिड भी हैं. तो जैसे अगर मान लिया आपको, हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, जो सिंपल वाली चीजें हैं, जैसे कि अगर हमें स्टेट्स का नेम चेंज करना है, दो स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बनाना है, एक स्टेट को ब्रेक डाउन करके दो स्टेट्स बनाने हैं, तो जो इजी प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और जिनको सिंपल मेजोरिटी से हम लोग डन कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, those all things we have taken from the British Constitution. I think the main things which we have taken from British Constitution are clear to all of you. Now second is Irish Constitution. Irish मतलब जो आयरलैंड कंट्री है, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से हमने क्या लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब देखो नाम से क्या क्लियर हो रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ऐसे प्रिंसिपल जो डायरेक्ट करते हैं स्टेट पॉलिसी, यानी दीज आर दी बेसिकली इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट दैट व्हाइल दे आर मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज फॉर द कंट्री, देन व्हिच थिंग दे शुड कीप इन देयर माइंड, दैट इज नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. यानी अगर आप लॉ बना रहे हो तो कैसे आप लॉ फ्रेम करोगे, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम डायरेक्ट करते हैं. And this feature we have taken from Irish Constitution. Got it? After that French Revolution, while I was teaching you the objective basically of Indian Constitution, identity of the people, I have told you liberty, equality and fraternity. And I told you that ये वो तीन लाइन्स हैं, तीन लाइन्स नहीं है, इवन तीन वर्ड्स ही हैं, जिनके ऊपर पूरी की पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाती है. And Indian people, the framers of Indian Constitution, they understood the meaning of these lines properly, these words properly, and that's why these things are taken as it is in the Constitution of our country. So ये जो lines है कि हम लोगों की liberty को maintain करके रखेंगे, सोसाइटी में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करेंगे, और फ्रेटर्निटी मतलब फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, that will also be maintained. This is taken from the French Constitution. Done. After that United States Constitution. अब हमने यूएसए से भी बहुत सारी चीजें ली हैं. अब यूएसए से कौन सी चीजें ली हैं, दैट इज चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अब देखो राइट्स क्या होते हैं, बेसिकली
Rights are your demands, but every demand cannot be considered as right. Right? So rights actually में होते क्या है? These are the rational demands which are accepted by the society and provided to you by the state. But some rights are there which are very much required for the complete growth of the individual. And these certain rights are guaranteed by the constitution, and these guaranteed rights are known as fundamental right. आप लोगों को भी पता होगा इन प्रीवियस क्लासेस, स्मॉल क्लासेस यू हैव स्टडीड कि हमारे पास 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू रिलीजन, राइट. कई सारे राइट्स आपके पास होते हैं. डिटेल में डोंट वरी, वी विल रीड ऑल दीज टाइप ऑफ राइट्स इन सेकंड चैप्टर. बट ये जो फंडामेंटल राइट्स का कंटेक्स्ट है कि आपको एक पर्सन को अगर कंप्लीटली डेवलप करना है तो कौन से राइट्स आपको देने पड़ेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गिव फंडामेंटल राइट्स. सो द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट वी हैव टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सेकेंड इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? एक तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लासेस आल्सो कि जुडिशरी जो है आपकी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का इंटरफेयर उसमें नहीं होता है. बट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, देखो रिव्यू क्या होता है, मैच में रिव्यू देखा होगा आप लोगों ने क्रिकेट में, वो चेक करते हैं कि क्या एक्चुअल में जो क्रिकेटर प्ले कर रहा था आउट था या नहीं आउट था, वही होता है ना रिव्यू, दोबारा चेक करना. एक बार चीजें होगी एंड यू आर चेकिंग देम अगेन. तो दिस इज ऑल्सो विद द लॉ एंड द प्रोसीजर कि अगर मान लिया लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया, so what is the duty? It is the duty of judiciary to check every law whether it is creating any kind of instability or whether it is putting any kind of harm on the constitutional values. And if any law which is made by legislature, which is implemented by executive, if it is not according to the spirit of the constitution, that it will be declared invalid. इट मीन्स क्या होगा कि हमारी पावर, जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की पावर, और जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने की जो अथॉरिटी है, पावर है, दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अलॉन्ग विद दिस फेडरल स्ट्रक्चर. फेडरल स्ट्रक्चर कैसे, जहां हमने पावर्स को डिवाइड कर दिया कि सेंट्रल लेवल पे पावर्स होंगी, स्टेट लेवल पे पावर होंगी. दैट डिवीजन ऑफ पावर ऑल्सो वी हैव टेकन फ्रॉम यूएसए, बट इट इज नॉट गिवन इन योर बुक. बट कीप इन माइंड दैट फेडरल स्ट्रक्चर वी हैव टेकन फ्रॉम द यूएसए. आफ्टर दैट कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हम लोगों ने, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एक ऐसा सिस्टम होता है, अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. आई टोल्ड यू कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन. बट उसके साथ हमारा जो फेडरलिज्म है ना, दैट इज ऑफ यूनिक फीचर. और वो यूनिक फीचर क्या है कि हमारी कंट्री में पावर डिवाइडेड तो है, although states are also getting authority directly from the constitution, but even then there are some provisions which tell us that center is more powerful. जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, that will be more powerful. And this system, and why we have done so, क्योंकि हमें पता था कि अगर आपने स्टेट्स को ज्यादा पावर दे दी तो कहीं ना कहीं एक कंट्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी. And if we want to keep the country as a united country only, then we will have to give more powers to the center only. And that's why we have adopted this type of structure in which center is more powerful in comparison of states. Got it? जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, मतलब पार्लियामेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट आपके लॉ बनाती है. वो क्या शो करता है कि हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं सेंटर ज्यादा पावरफुल है. कुछ चीजें जैसे हमारे स्टेट्स में गवर्नर को अपॉइंट करने का टास्क कौन करता है, दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट. तो ऑल्दो गवर्नर्स आर वर्किंग इन द स्टेट, बट इवन देन दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ये चीजें क्या शो करती है, दैट इन इंडिया वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग सेंटर. आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू. And second thing that we have taken from Canadian Constitution, that is idea of residual powers. अब देखो residual powers कौन सी powers होती है, आप लोगों ने previous classes में भी पढ़ा होगा that we are having
3 टाइप ऑफ लिस्ट विच आर गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या होती है? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और उसके बाद होती है रेजिडुअल पावर्स। अब सेंट्रल लिस्ट कौन सी होती है? सेंट्रल लिस्ट इंक्लूड दो सब्जेक्ट्स ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। जैसे आपने मान लिया करेंसी से रिलेटेड कोई लॉ बनाना था, ठीक है, तो वो क्या होगा? दैट विल बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ इफ यू कम ऑन द सेकंड पॉइंट, दैट इज स्टेट। स्टेट लिस्ट मतलब ऐसे लॉज, ऐसे सब्जेक्ट जिन पे लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हरियाणा पुलिस, है ना, राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस। क्यों? बिकॉज पुलिस इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट और इसीलिए आपकी स्टेट गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाएगी। गॉट इट? एग्रीकल्चर इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। उसके बाद जब आप आ जाते हो थर्ड लिस्ट, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? जिस पर दोनों की दोनों गवर्नमेंट लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। बट इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट, तो क्या होगा? उसपे अगर कंफ्लिक्ट हो रहा है तो उसमें क्या होगा? उसमें ऐसी चीजें होंगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया वो चीजें क्या होंगी? वही चीजें वैलिड होंगी। मतलब ये चीजें भी शो करती है दैट इन इंडिया वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग सेंटर इन कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स। गॉट इट? जैसे एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों गवर्नमेंट्स लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। अभी आता है ये कंसेप्ट रेजिडुअल पावर्स का। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ना तो सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड हुए, ना स्टेट लिस्ट में इंक्लूड हुए, ना कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड हुए। क्यों? लेट मी टेल यू द रीजन कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कहीं इंक्लूड ही नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि उस टाइम पे साइबर क्राइम थे ही नहीं। तो अब जो ऐसे ऐसे नए नए सब्जेक्ट्स अमर्ज हो रहे हैं, ये सारी की सारी पावर्स को हमने किस कैटेगरी में डाला है? इनके ऊपर जो लॉ बनेंगे वो पावर्स अथोराइज्ड होंगी बाय द रेजिडुअल पावर्स। और ये पावर भी किसके पास है? ये पावर भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। गॉट इट? I think these all things are clear to you and you are able to get not only the idea, not only the concepts which we have taken from the another country, but you are also able to get the actual meaning of all these terms. Right? And in any subject, I am saying terminology is the most important. If you are aware about the terms and the meaning of the word, you will be able to understand it properly. And you will not only able to understand it, but your interest will also increase in the subject. So now till here I think everything is clear to you and now we are coming on the conclusion part. अब देखो conclusion part basically आपको क्या शो करता है? Conclusion part शो करता है that by if we conclude whole of the chapter, what we are able to get? We are able to get that India has presented the idea of that constitution which is having each and everything, which is having goals and ideals for the society, which has given identity to the people, which has involved some kind of fundamental values, which is providing some kind of rights to the people. Along with this, it is putting some kind of restrictions over the government along with the distribution of power. ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं ना कहीं बेस है कि आपने ये सारी की सारी चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की, राइट? And that is the reason, along with that, the most important beauty of Indian Constitution is that it's a living document. And living document, why we are considering it living document? Because there are a lot of changes in the society, but along with the changes, it is having the capacity to change itself and to include new values in it. And that's why we are considering it as a living document. Got it? And just by that, we are able to get the things that why we have devoted that much of time for the framing of the constitution. Right? And India presented the idea
of that coordination, that combination, that it presented an example in front of the world. And lot of the country have understood a lot of things from Indian constitution. Because when the Britishers have left India and India became independent, there was a question in their mind. And they were challenging Indians कि कुछ ही टाइम के बाद ना इंडिया डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. क्यों डिसइंटीग्रेट हो जाएगा? बिकॉज इंडिया इज हैविंग अ ह्यूज डाइवर्सिटी. और ब्रिटिशर्स के दिमाग में ये था कि इतनी डाइवर्सिटी को कोई कंट्री डील ही नहीं कर सकती है. But with the help of that constitution, what we have done, we have arranged that kind of arrangements in our constitution that we have tackled everything in a very beautiful manner. अगर हमारे पास डाइवर्सिटी भी थी तो हमने उस डाइवर्सिटी को एज अ हर्डल ट्रीट नहीं किया. उस डाइवर्सिटी को हमने कंट्री की एज एन ऑर्नामेंट यूज किया. एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू हिमसेल्फ स्टेटेड दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, and that is the beauty of India. And if we are able to maintain that kind of feelings, that kind of emotions in our minds, in our soul, that is just because of the constitution of the country. And that's why we can proudly say that Indian constitution is that kind of constitution which is providing a very unique example in front of the world. I think the whole chapter is completely clear to you and there should be no any kind of doubt. But even then, if you are having any kind of query, any kind of question, feel free to ask your doubts in comment section. And in next video, we will do the question answers of the same chapter. And I will bring one part for the MCQs question also. So till then, stay connected, keep learning. Thank you. Thanks a lot.